Hello, students. Welcome back to the class of physics. Well, students, as you know that we are in the process of doing the chapter magnetic effects of current. And in the last session, we started question answers of the chapter and exercise. Okay, and we finished till question 7. So today we will start from question 8. See, what is question 8? How does a solenoid behave like a magnet? A current carrying solenoid behaves like a bar magnet. The magnetic field around a current carrying solenoid is similar to that around a bar magnet. Okay? उससे आगे पूछता है कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट. एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वैसा ही प्रोड्यूस होगा जैसा बार मैग्नेट के आसपास होता है. तो वो कह रहा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड का कौन सा एंड नॉर्थ पोल का बिहेव करेगा और कौन सा साउथ पोल का. कैन यू डिटेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? यस, वी कैन डिटेक्ट इट. टेक अ बार मैग्नेट and bring its north pole towards current carrying solenoid. And if the north pole of the bar magnet is attracted by a solenoid, it means that end of the solenoid is behaving like a south pole. And if it is repelled, it means that end of the solenoid is behaving like a similar pole, means north pole. So this is the way how you can detect north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet. Okay. Now see the next question 9. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? See that you know if current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. An electric motor works on this principle that you know. But how you place current carrying conductor in magnetic field, force matters. Force depends on that. Means the angle between current carrying conductor and magnetic field. तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाए, ओनली देन इट विल एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट फोर्स. ओके, बाकी और किसी भी एंगल पे रखेंगे तो फोर्स कम लगेगी, और अगर आप पैरेलल रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स जीरो ही लगेगी. तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ कि a current carrying conductor experiences maximum force in a magnetic field when it is placed perpendicular to the direction of magnetic field. Okay. Now see the 10th. Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. आप एक चैम्बर में बैठे हैं और आपकी बैक जो है उस चैम्बर की वॉल की तरफ है. An electron beam moving horizontally from back wall. और एक इलेक्ट्रॉन का बीम आपकी बैक वॉल से आ रहा है, और जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड है उस रूम में, तो जब वो इलेक्ट्रॉन का बीम उस मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो आपके राइट साइड की तरफ उस पर फोर्स लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज इज कमिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो उस फोर्स की वजह से वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है. तो वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी, ये बताइए. देखिए, एक चीज़ जो आपको सबसे पहले ये समझनी है कि हेयर एन इलेक्ट्रॉन, हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रोटॉन हो. आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मीन्स charge is entering in magnetic field, and whenever charge enters in a magnetic field, that experiences a force. Correct. And to find the direction of magnetic field or to find the direction of force, we will apply Fleming's left hand rule. For that, left hand rule में अपना लेफ्ट हैंड का थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर लें. बैक वाल से फ्रंट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन बीम की होगी करंट की उसके अपोजिट होगी. तो आपका जो थंब है वो आपकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फ्रंट से आपकी तरफ होगी. तो लेफ्ट हैंड का थंब आपकी तरफ पॉइंट करे, और आपकी जो मिडिल फिंगर है, जो फोर फिंगर के साथ वाली फिंगर है, वो आपके राइट साइड की तरफ पॉइंट करे, क्योंकि फोर्स लगती है. तो सॉरी, आपका जो थंब है, क्योंकि थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जो थंब है लेफ्ट हैंड का आपका, वो राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट करे, क्योंकि फोर्स किधर को लग रही है, राइट साइड पे. तो मिडिल फिंगर शुड बी टुवर्ड्स यू एंड थंब शुड बी टुवर्ड्स योर राइट. तो ऐसे में जो फोर फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी. तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी. और लिखना कैसे इसे, तो आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, the direction of magnetic field will be vertically
डाउनवर्ड, दैट्स इट। करेक्ट। तो एक बार फिर सुन लीजिए जल्दी से। स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट मिडिल फिंगर should be pointed towards you, that is the direction of current, and thumb that should be towards your right. Then the forefinger will be vertically downward, that will be the direction of magnetic field. Okay, I hope I am clear to you. आप इसे करके देखिएगा, और नहीं तो क्लास में जब रिवीजन लेंगे या जूम सेशन लेंगे जब रिवीजन का, तब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, explain its principle and working, what is the function of split ring in an electric motor। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के सेशन में हमने ये सब किया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है यूट्यूब के लिंक पे, उसका प्रिंसिपल है, उसकी वर्किंग है, और स्प्लिट रिंग के फंक्शन है, और उसमें लिखे भी हुए हैं, मेंशन भी हैं, हर पार्ट की वर्किंग उसमें लिखी हुई है, और हर पार्ट का रोल भी लिखा हुआ है। स्प्लिट रिंग्स हैं, कम्यूटेटर है, स्प्लिटरिंग है, या आपका कार्बन ब्रशेज है, आर्मेचर है, इन सब का रोल लिखा हुआ है। ठीक है। और स्प्लिटरिंग का फंक्शन क्या होता है? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रिवोल्यूशन। तो गो टू दैट सेशन, डायग्राम ऑफ मोटर इज देयर, प्रिंसिपल एंड वर्किंग इज देयर, एंड फंक्शन ऑफ स्प्लिटरिंग इज ऑल्सो देयर। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट सेशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेम सम डिवाइसेज इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। ये आपका सीलिंग फैन है, मिक्सर एंड ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, वाटर पंप है। ठीक है। ये बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। फाइन, तो आप टॉयज़ ना लिखें चाहे, और उसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रिक फैन है, वाटर पंप है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, इनमें सब में होती है। करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, withdrawn from inside the coil and held stationary in the coil। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं वापस कंटेंट पार्ट पे जाता हूँ, वहाँ से ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये देखिए, ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, देखिए ए, यहाँ पर ये सी, यहाँ पर एक कॉयल है और एक बार मैग्नेट है। वो कह रहा है व्हाट विल हैपन, और हमने इस कॉयल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट भी किया हुआ है। तो वो कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुश this magnet inside the coil। तो when we push north pole of the magnet inside the coil या magnet inside the coil, galvanometer will show deflection। ठीक है। और वो डिफ्लेक्शन तब तक आएगा जब तक ये मूवमेंट बना हुआ है। तो आप लिख सकते हैं galvanometer will show a momentary deflection। करेक्ट। एंड when you will pull it back, again the galvanometer will show deflection। but if you will keep this magnet stationary inside the coil, then there will be no deflection noticed। करेक्ट। तो क्वेश्चन में तो आप इतना लिख देंगे, लेकिन वजह आपको पता है, when you move magnet towards the coil or away from the coil, in both the cases there is a relative motion between magnet and coil। as a result, magnetic field lines at a point, or you can say magnetic flux will change, as a result current will be induced। ओके, तो एक बार फिर वहाँ क्वेश्चन पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए इसे यहाँ पर ध्यान से। अ कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉयल। तो आप लिखेंगे इफ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉयल, गैल्वेनोमीटर्स needle will show a momentary deflection। withdraw from inside the coil, galvanometer's needle will again show a momentary deflection। held stationary inside the coil, then galvanometer will not show any deflection। that's it। correct। Now see the 14th. Two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current induced in coil B? Give reason। देखिए ये एक्टिविटी भी मैंने आपको कराई हुई है यहाँ पर, इसे देखिए। यहाँ पर वो कह रहा है ये थी ये एक्टिविटी, देखिए सबसे लास्ट सेशन में थी। यहाँ पर देखिए इसमें दो कॉयल है, एक कॉयल 1 और एक कॉयल 2। वो कह रहा है कि कॉयल 1 में यहाँ पर अगर हम करंट चेंज करेंगे तो विल सम करंट इंड्यूस्ड इन कॉयल B? आंसर इज यस। When you will change current in the coil 1 or primary coil, some current will be induced in coil 2। Yes। Now, what is the reason behind it? आप नीचे reason underline करके लिख सकते हैं। क्या? When current in coil 1 or primary coil is changed, then the magnetic field lines linked with coil 1 will also change।
and since the coil 2 is kept close to coil 1, so the magnetic field lines linked with coil 2 will also change. As a result, current will be induced in coil 2. Correct? जिसे मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह रहा हूँ, आप वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिख सकते हैं उसे. करेक्ट? कॉइल 1 में करंट चेंज होने पर कॉइल 1 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. कॉइल 2 उसके क्लोज है, इसलिए उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, जिससे कॉइल 2 में करंट इंड्यूस होगा. करेक्ट? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14. नाउ वी आर मूविंग टू 15 देखिए, ये 3 पार्ट्स हैं इसके और तीनों हमने किए हुए हैं. स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था ये 3rd सेशन में. मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में प्रोड्यूस होती है. एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड आई टोल्ड यू अबाउट राइट हैंड थंब रूल. तो पहले वाले केस में जो रूल होगा उसका नाम होगा राइट हैंड थंब रूल. एंड व्हाट इज दैट रूल? दैट वी हैव ऑलरेडी डन. वहाँ आप देख लीजिएगा. वैसे वो रूल ये था कि imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand in such a way that the direction of thumb is in the direction of current. Then the direction in which our fingers wrap or encircle, that will give the direction of magnetic field. Okay? तो ये हम कर चुके हैं. सेकंड देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. मोटर का प्रिंसिपल, इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम आएगा, वो मैंने आपको लिखवाया हुआ है. और थर्ड, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट इंड्यूस होता है जनरेटर में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट सेशन, इसमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल वर्क करेगा, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा. करेक्ट? तो पहले में राइट हैंड थंब रूल, दूसरे में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरे में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और इनका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा. करेक्ट? Now see the next. Explain the underlying principle and working of generator. Now this question, the content of this question is no more in your course. That has been deleted. So you can leave question 16. 17. When does an electric short circuit occur? ये भी डोमेस्टिक सर्किट में है, उससे अगला अर्थवायर में है. ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है. डोमेस्टिक सर्किट लास्ट टॉपिक है, वो भी नहीं है आपके कोर्स में, तो बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं. ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स इस एक्सरसाइज के. करेक्ट? सो दिस चैप्टर इज ओवर एज वेल एज द कोर्स ऑफ फिजिक्स इज ओवर. हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, वी हैव फिनिश्ड ऑल द 4 चैप्टर्स. वी हैव डन देम इन डिटेल. एंड एज फार एज द लास्ट चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कंसर्न, CBSE में उसमें लिखा हुआ है द होल चैप्टर इज डिलीटेड. फिर भी मैं देखूंगा इफ any part of that chapter is still left which is yet to, जो पेपर में आ सकता है. अगर ऐसा हुआ then we will discuss, otherwise the course is finished. Correct? And Monday onward we will start revision. Correct? For 2 days your revision will be of biology, for 2 days it will be of chemistry, and for 2 days it will be of physics. Correct? So those students who have not taken the earlier sessions of the chapters seriously, now it's a golden chance for them कि they should regularly go to the revision session, ताकि पेपर तक, बोर्ड के पेपर्स तक या प्री बोर्ड तक they should be comfortable. Okay, till then, bye bye. Thank you very much. Stay safe, stay at home.